मॉडिफिकेशंस या उसमें जो अल्टरेशंस वो नेसेसरी समझती है वो उसमें कर सकती है, और कंपनी जो है वो इन रिगार्ड टू दोज मॉडिफिकेशंस उस पे अमल करने की पाबंद होगी। If a court is satisfied that a compromise or arrangement sanctioned cannot be worked satisfactorily with or without modification, it may either by own motion or upon receipt of application make an order for winding up of the company. I think it's clear कि अगर court satisfied है कि compromise or arrangement is not working for a company, it may upon receiving an application order for winding up of the company. The provision of this section shall also apply to a company in respect of which an order has been made before the commencement of this ordinance sanctioning a compromise or arrangement. ये ऑर्डिनेंस उन चीज़ों पे भी अप्लाई होता है जो कि ये जो इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होती हैं कि इस ऑर्डिनेंस के पास होने से पहले जो हो चुके हैं, वाइंडिंग अप हो चुकी हैं कंपनीज की। Next is section 286, information as to compromises or arrangement with directors, with creditors and members. Number one, where a notice regarding meeting of creditors or members is called, with every notice there shall be a statement setting forth the terms and conditions regarding compromise or arrangement and its explanation along with the facts. In every notice calling the meeting which is given by advertisement, there shall also include the place and manner in which creditors and members have to attend the meeting. Number two, where the compromise or arrangement affects the rights of debenture holders of the company, the statement shall give the like information and explanation as respects to the trustees and directors of the company. Number three, where a notice given by advertisement include a notification that copies of a statement setting forth terms and conditions regarding compromise or arrangement can be obtained by the creditors or members upon making an application in the manner indicated by the notice, be furnished by the company free of charge. Number four, in case of default made in complying with any of the requirements of this section, the company and every officer responsible shall be liable to a fine of 2,000 rupees. For this purpose, the liquidator of the company, the trustees for securing the issuance of debentures will also deemed to be the officer of the company. इसमें जो trustees हैं for issuance of debentures will also be deemed as the officer of the company. Every director, including chief executive and managing agent of the company, and every trustee shall give notice to the company of every such matter for the purpose of this section and on the request of the company. Section 287, provisions for facilitating an amalgamation of the companies. I think amalgamation, we all know, is a joint venture of two companies, two or can be more companies. Where an application is made to the court regarding sanctioning of companies or arrangement proposed, and it is shown to the court that such compromise or arrangement has been proposed for reconstruction of a company or the amalgamation of any two or more companies or the division of any company into two or more companies, and that under the scheme the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of the companies concerned in the scheme is to be transferred to another company, the court either orders sanctioning the compromise or arrangement by any subsequent order make provisions for all the matters. इसमें जिधर compromise या arrangement हो रहा होगा या amalgamation जो involve होगी two or more companies में, तो उनके जो assets liabilities होंगी वो दूसरी company में उस company के साथ ही transfer हो जाएंगी. Number two, where an order provides for the transfer of property or liabilities. एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा. I have a question class से कि मुझे इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि कंपनी का कोई एक डिवीजन कैसे किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो सकता है? Can anybody give me an example? जी एहसन साहब. जी एहसन. सर ये अमेलगामेशन को जब मैंने रीड किया था तो इसमें बेसिकली सब्सिडरी कंपनीज के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था कि जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके भी अकाउंट्स और उनके भी सारे जो रूल्स हैं वो भी आप शो करवाएं.
ठीक हो गया, लेकिन डिवीजन जी सर फातिमा ठीक है ऐसा मे आप आई ठीक कह कोट रहे एन हैं। एग्जांपल सर? हाँ मैं आपकी तरह आपके पास मैं आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ तला, 1 मिनट जी फातिमा। जैसे कि अंडर वन अम्ब्रेला डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स होते हैं, तो आप अपने किसी भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को अगर डिवर्सिफाई कर दें तो फिर ये इतना हो सकता है कि वो किसी और कंपनी के अंडर चला जाए। फॉर एग्जांपल दे सकती है मुझे कोई रियल लाइफ की? एग्जाम्पल जैसे कि ओ माय गॉड, वो जैक वेल्च था, उसकी कंपनी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, दैट इज अ वेरी रिनाउंड कंपनी, जनरल मोटर्स आई गेस। तो उन्होंने इस तरह से किया था जब वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, तो जो उनके बिजनेस यूनिट्स उनके मुताबिक उतने एफिशिएंट नहीं थे जितना उन्होंने बेंचमार्क किया था, तो उनको सोल्ड आउट कर दिया था। नहीं, अमेल्गमे सोल्ड आउट करना तो एक फर्क बात है, मैं एक डिवीजन की अमेल्गमेशन की बात कर तो रहा हूँ। वो ठीक है, इसलिए थैंक यू कहना है सो ना मच कि वो जी। फिर जब वो दूसरी कंपनीज ने ही जब उसको वो ले लिया तो दैट बिकम द पार्ट ऑफ इट। उन्होंने बिल्कुल उसको अपने बिजनेस लाइन या अपने बिजनेस जो उनका पोर्टफोलियो था उससे रेडिकेट कट ऑफ कर दिया था। ठीक है जी। हाजरा आपने हैंड रेज किया था, हैंड रेज करके प्लीज नीचे ना किया करें, बताएं जी। हाजरा, हाजरा खान। सर इधर शेखुपुरा के पास एक प्लांट था ऑयल का, आई गेस डालडा का था। उसका ओके मुझे पता है कि उसने वो पहले वो था किसी और कंपनी का था, लेकिन अब उसको यूनिलीवर ने टेक ओवर कर लिया। मेरे ख्याल में डालडा ही है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है। ये तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है कि उसको उन्होंने ले लिया था। इसमें शायद ये वाली डिवीजन में ये बात आती है। ठीक है जी। तलहा आप क्या कह रहे थे? ओके जी सर तलहा। मैं इसमें कोट करना चाह रहा था सर। रिसेंट काफी सारे एग्जांपल, जैसे सर वॉल्स के आने से पहले सर पाकिस्तान में पोल्का एंड जमी काम कर रही थी, उनको टेक ओवर किया था देन इसने वॉल्स ने। और वो तमाम जो बिजनेस है अलॉन्ग विद देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो उधर ट्रांसफर हो गया उनमें वॉल्स में। देन आरबीएस है सर, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड सर, वो रिसेंटली एक्वायर हुआ था। और उसके अलावा सर एक दो और बैंक थे जिनके रिसेंटली। आरबीएस ने एक्वायर किया था एबीएन एमरो को, और फिर जी जी सर, फैसल बैंक बिल्कुल ने एक्वायर किया था आरबीएस को। ठीक है, सर बिल्कुल सर। लेकिन जी जी जी। मैं कौन कुछ क्या कह है सकती हूँ? कुछ जी मुकद्दस बात मुकद्दस, जी करिए। जी बताएं। जी जी सर ये मुकद्दस, जी जी जी। टेक ओवर्स जो हैं ये कुछ और हैं। एमलगमेशन जैसे आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली। ही बिजनेस है और उसके 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं। एक यूनिट जो है अगर उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है या वो लॉस में जा रहा है, तो 2 यूनिट्स इकट्ठे कर दिए जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग या पैकेजिंग का यूनिट जो है वो इकट्ठा कर दिया जाए। ठीक है, टेक ओवर जो है वो बिल्कुल कोई कुछ और चीज है। ये मतलब बिल्कुल। बाकी सब लोग जो बता रहे हैं ये एमलगमेशन का नहीं बता रहे, ये टेक ओवर का बता रहे हैं, एक्वायर कर लेना या टेक ओवर कर लेना। आप ठीक कह रही हैं। एसन की मैं बात सुन लूं, फिर मैं आपकी बात का एक आंसर भी देता हूँ। जी एसन, जी एसन साहब। सर यूनिट है एक सरीना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जिनके ये 5 ब्रांड हैं, मिनी माइनर, ब्रीजे, केसरिया एंड लेयर क्लब, सीमा जमान इसकी ओनर है। एंड हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इनका बिल्कुल। और इनका एक दूसरा यूनिट है अली एम्ब्रॉयडरी, सिस्टर कंसर्न थी, जिनको इन्होंने टोटली एम्ब्रॉयडरी को भी उसी में हायर करके और फिर उनके साथ इनके उस डिवीजन को भी उसी में ये लेके आए थे, क्योंकि वो लॉस में जा रहा था। मींस के पहले उनकी जो प्रोडक्शन थी वहां पे सिर्फ प्रे सोर्सिंग कोड़ा कपड़ा तैयार होता था, लेकिन उसके अकाउंट्स अलग थे। तो फिर अली एम्ब्रॉयडरी जहाँ से वो करवाते थे, तो वो फिर उन्होंने अपना हैंडओवर लिया था और उसके साथ उन्होंने ज्वाइंट वेंचर, मींस के वो भी उन्हीं की थी, डिवीजन सेम कर दी थी उन्होंने, एक इंडस्ट्री में लेके आ गए। ठीक है ठीक है। अच्छा, जो बिजनेस डिवीजन की बात ऐसे है ना, देखें आपके पास एक अम्ब्रेला ब्रांड होता है, जैसे यूनिलीवर है। यूनिलीवर के नीचे बिजनेस डिविजन्स हैं, ठीक है, मल्टीपल। यूनिलीवर है या रैकेट ब्रिगेजियर है या और मल्टीपल कंपनीज है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ठीक है। उसके एक पर्टिकुलर यूनिट या एक डिवीजन जो है वो भी जेबी कर सकता है किसी, फॉर एग्जांपल जिस तरह लेट्स से एक अगर प्रोडक्ट की हम बात करें कि सनसिल्क है, ठीक है, सो दे कैन डू अ जॉइंट वेंचर। ऑलरेडी उन्होंने एक अपनी रेंज इंट्रोड्यूस करवाई थी। मैं आपको ब्रांड की साइड से एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ कि आपका एक डिवीजन है, उसने स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर आगे एक और जॉइंट वेंचर या एक और अमेलगमेशन की है। तो उन्होंने एक अपनी रेंज इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसके अंदर उन्होंने दुनिया के जो टॉप हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर प्रोफेशनल्स थे उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके, तो उन्होंने अपनी रेंज को, मतलब इट वाज अ मार्केटिंग गिमिक, बट उन्होंने किया था। ये एक ब्रांड के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक डिवीजन इतना स्ट्रांग हो कि वो अपनी एक्सपर्टीज या अपनी जो एबिलिटी है वो किसी के साथ शेयर कर सके, या फिर वो इटसेल्फ
एज अ डिवीजन किसी और इंटायर फुल फ्लैज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके और वो परफॉर्म कर सके। दुनिया में इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, फोर्ड ने ये किया है, जनरल मोटर्स ने ये किया है, एक कंपनी है एविएशन की वो लॉकहीड एंड मार्टिन उसका नाम है, उसने ये किया है, ठीक है। तो देयर अभी अभी किसी ने हैंड रेज किया हुआ था जी, मारिया अमार ने किया था, आप कुछ कहना चाहती थी? नहीं सर, वो मैं बस ये कहना चाह रही थी कि वो जो एक था ना, एक इंडिया की गाड़ी भी आई थी मारुति, फिर वो जी जी मारुति बिल्कुल, सुजुकी, बेटे पहले पेन भी उन्होंने चेंज करवाओ जापान में चलो। इसके साथ जी जी अमेलगमेशन किया था। जी 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 जी। किसी का माइक अनम्यूट है जी, प्लीज वो म्यूट कर दें दोबारा से। ठीक हो गया, कंटिन्यू करें जी तलहा साहब। ओके, फेयर इनफ। जी सर, इसमें सबसेक्शन 2 है, वेयर एन ऑर्डर प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज दैट प्रॉपर्टी shall by virtue of the compromise or arrangement be transferred to and vest in the liabilities of the transferee company. Number 3, where an order made under this section, every company in relation to which the order is made shall cause a certified copy will be delivered to registrar within 30 days. Non-compliance will result in the company and every officer responsible for the default shall be liable to a fine of 1,000 rupees. Number 4, ओके in this section, the property includes the property, rights and powers of every description, and the expression liabilities includes duties. Section 28. Notice to be given to registrar for applications under section 284 and 287. सर ये एप्लीकेशंस हैं, इसमें जो पहले हमने सेक्शन डिस्कस किए थे, पावर्स टू कंप्रोमाइज विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स, एंड सेक्शन 283 पावर्स फॉर कंपनीज टू रेफर मैटर्स टू फॉर आर्बिट्रेशन। ओके सर इसमें इंफॉर्मेशन एज टू कंप्रोमाइज और अरेंज विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। नंबर 1, where a notice regarding meeting of creditors or members is called, with every notice shall be a statement setting forth the terms and conditions regarding compromise or arrangement and its explanation along with effects. In every notice calling the meeting which is given by advertisement, there shall be also include the place and manner in which creditors are and members have to attend the meeting. Sorry, it was wrong slide I was reading. It was section 288. I was reading the previous section. Section 288 पे please आ जाइएगा first of. जी, notice to be given to registrar for applications under section 284 and 287. The court shall give notice of every application made to it under section 284, 287 to the registrar and shall take into consideration the representation, if any, made to it by the registrar before passing any order under any of these sections. इसमें प्रायर नोटिस जो है वो हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट देना पड़ेगा जो कि रिसीव होंगी सब सेक्शन 284 और 287 जो इससे प्रीवियस सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके रिगार्डिंग अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो पहले प्रायर नोटिस देगी कोर्ट। सेक्शन 289, पावर एंड ड्यूटी टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स dissenting from scheme of contract. Where a scheme or contract involving the transfer of shares in the transferor company to transferee company has within 120 days after making of the offer in that behalf by the transferee company been approved by the holders of not less than 9/10 of the value of the shares whose ट्रांसफर इज इन्वॉल्व। इसमें ये है कि सर जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या स्कीम के तहत अगर एक कंपनी के शेयर्स दूसरे में ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो 120 डेज पहले उन्हें वो ऑफर से पहले जो है वो एक तो प्रायर नोटिस इशू करना पड़ता है। सेकेंडली ये कि वो जो शेयर्स है वो 9/10 से कम ना हो जिनकी वैल्यू टोटल वैल्यू से। And the transferee company may at the time within 60 days after the expiry of above 120 days give notice in prescribed manner to any dissenting member that it desire to acquire his share। अगर कोई उस जो प्रेजेंट की गई है स्कीम या कोई कॉन्ट्रैक्ट
उससे वो कोई उसके अलावा अगर कोई बंदा अपने शेयर्स जो है वो एक्वायर करना चाहता है तो वो पहले नोटिस देगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 120 days, within 60 days. When such a notice is given, the transferee company shall be entitled and bound to acquire those shares on the terms on which, under the scheme or contract, the shares of the approving shareholders are to be transferred to the transferee company. Any sums received by the transferor company under this section shall forthwith be paid into a separate bank account to be opened in a scheduled bank. जिन लोगों को उनके शेयर्स की अमाउंट वो जो है ट्रांसफर करने के लिए एक शेड्यूल बैंक में अलग से अकाउंट वगैरह ओपन किया जाएगा। और ऊपर जो लास्ट इसमें लाइंस थी उसमें यह था कि कंपनी जो है वो अगर कोई अलग से अपने शेयर्स जो है वो करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, तो ट्रांसफरी कंपनी को नोटिस देगा, जो कि फर्स्ट नोटिस जो कि कंपनी की तरफ से होगा 120 डेज का। उसके बाद 2 months नोटिस जो कि 60 डेज के विद इन देगा नोटिस। Next section is 290, prevention of oppression and mismanagement, application to the court. If any member, creditor or group. Sorry, Talha, अगर मिस मुकद्दस शायद 290 से कंटिन्यू करना चाहती थी सर। सर तलहा ये कंटिन्यू करें या मिस मुकद्दस कर लें कंटिन्यू? ओके तलहा आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी मुकद्दस आप 290 से कंटिन्यू करना चाहती हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। जी सर आप इजाजत दें तो मैं कर लेती हूँ, नो इशू। जी करें तलहा ठीक है, थैंक यू जी, आप करें ओके। फवाद साहब वो हमारी प्रेजेंटेशन ओपन कीजिएगा प्लीज। ठीक है, थैंक यू तलहा, थैंक यू। Part 10, prevention of oppression and mismanagement, section 290, application to court. ये सर ऑपरेशन जो है ये होता है कि कोई रूल्स और प्रैक्टिसेस हैं, अगर कोई क्रेडिटर है या कोई एम्प्लॉई है और वो ये देखे कि कंपनी के जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं वो अनजस्ट हैं, तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड है सारा सेक्शन। If any member or members who holding not less than 20% of the issued share capital of the company, or a creditor or creditors having interest equivalent in amount not less than 20% of the paid up capital of the company, complain or the registrar is of the opinion that the affairs of the company are being conducted or are likely to be conducted in an unlawful manner. ठीक है, या तो बस ये बताया हुआ है कि या तो क्रेडिटर्स हैं उनकी परसेंटेज बताई हुई है कि कितने परसेंट जो है वो पेड अप कैपिटल या शेयर कैपिटल कोई होल्ड करे, या तो ये जो है ये मतलब एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में मिसमैनेजमेंट के खिलाफ, या फिर रजिस्ट्रार अगर ये ऑब्जर्व करता है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो एप्लीकेशन पुट फॉरवर्ड कर सकता है। वेयर एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मेक्स एन ऑल्ट्रेशन इन or addition to a company's memorandum or articles, then notwithstanding anything in any other provision of this ordinance, the company shall not have power without the leave of court to make any further alteration or addition to the memorandum. अगर फर्दर वो कहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई किसी भी किस्म की कंपनी को कोई ऑल्ट्रेशन चाहिए अपने मेमोरेंडम में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो वो कोर्ट की इजाजत के बगैर ये ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकती। Next, a copy of any order under this section altering or adding to or giving leave to alter or add to a company's memorandum or article shall within 14 days after making thereof be delivered by the company to the registrar for registration, and if the company makes default in complying with this subsection, the company and every officer of the company who is knowingly and willfully in default shall be liable to fine, which may extend to 5,000 rupees, and to a further fine not exceeding 100 rupees for every day after first
during which the default continues registrar for registration. सर ये तो सिंपल है बिल्कुल, इसकी पेनल्टी क्या बताया हुआ है, कितनी पेनल्टी है अगर वो इस सेक्शन से जो है वो डिफॉल्ट करते हैं. नेक्स्ट, सेक्शन 291 पावर्स ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 290. अब ये सेक्शन डील करता है कि जब कोर्ट के पास एप्लीकेशन पहुंच जाती है कंपनी के मिसमैनेजमेंट या जो है इलीगल अफेयर्स की, तो कोर्ट के पास फिर कौन सी पावर्स हैं उस एप्लीकेशन को लेके. विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द पावर्स ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 290, an order under that section may provide for the termination, set aside or modification of any agreement, however arrived at between the company and any director, including the chief executive, managing agent or other officer, upon such terms and conditions as may in the opinion of court be just and equitable in all the circumstances. कोर्ट कहते हैं कि कंपनी या इसके कोई भी डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के दरमियान या 2 या 3 लोगों के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट है जिसको कोर्ट देखे कि उस एप्लीकेशन जो उनके पास गई थी उसके रेफरेंस से वो जो है वो एग्रीमेंट इलीगल है या अनजस्ट है, तो कोर्ट उसको खत्म कर सकता है या उनको रोक सकती है कोर्ट जो है. सेटिंग असाइड ऑफ एनी ट्रांसफर, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट, execution or other transactions not relating to property made or done by or against the company within 3 months before the date of application, which would, if made or done by or against an individual, be deemed in his insolvency to be a fraudulent preference. इसमें ये बताया हुआ है कि अगर कोई एग्रीमेंट है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना हो, ठीक है, उसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स हो सकती है या पेमेंट है किसी भी किस्म की या किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन है, ठीक है, वो इस एप्लीकेशन जो उनके पास गई है उसको फाइल करने से 3 माह पहले के अंदर अगर कोई जो है एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया इन चीजों से रिलेटेड, तो कोर्ट उसको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कंसीडर करेगी. नेक्स्ट स्लाइड. Any other matter, including a change in management, for which, in the opinion of court, is just and equitable, that provision should be made. Next, please. Interim order. Pending the making by it of a final order under Section 290, the court may, on the application of any party to the proceedings, make such interim order as it thinks for regulating the conduct of the company's affairs upon such terms and conditions as appear to it to be just and equitable. ये वही बात है जो पहले सर भी बता रहे थे कि कंपनी जो है वो ऐसी मतलब चीज है कि यहाँ किसी भी वक्त कोई भी शख्स जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और किसी भी वक्त कोर्ट जो है वो कोई भी ऑर्डर इशू कर सकती है. नेक्स्ट, क्लेम फॉर डैमेजेस इनएडमिसिबल. किन केसेस में जो लॉसेस हैं किसी पार्टी को वो जो है माने नहीं जाते. इनएडमिसिबल है कि मतलब जिसको एक्नॉलेज ना किया जा सके, जो ऐसे डैमेजेस जो गुड ना हो सके. Where an order of the court made under Section 290 terminates, set aside or modifies an arrangement, the order shall not give rise to any claim whatever against the company by any person for damages or for compensation for loss of office or in any other respect, either in pursuance of the agreement or otherwise. कोर्ट जो ऑर्डर देती है उसके अलावा जो है वो आप मतलब सिर्फ ऐसे जो लॉसेस हैं वो गुड होंगे जो कोर्ट कहे. उसके बगैर अगर कोई बंदा वो करता है मतलब क्लेम कर ले कंपनी से, तो कंपनी पे कोई लायबिलिटी नहीं है उनको एक्नॉलेज करनी. नेक्स्ट, सेक्शन 294. एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस to proceeding under this part. In relation to an application under Section 290, Section 410 to 15 shall mutatis mutandis apply as they apply in respect of winding up.
ये एक लीगल टर्म है जो जिसमें बताया गया है, मतलब इसका मतलब ये है म्यूटेटस मुटेंडिस, कि अगर एक ही नौयत के दो केसेस हैं, दो केसेस मतलब कोर्ट डील कर रही है, तो वो क्या करेगी, वो सेक्शन 410 to 15 में उसकी डिटेल है। बस आगे चलिए, बस आप आगे चलें। अच्छा एक सेकंड, सॉरी। म्यूटेटिस पीछे साइड पे जाएं वापस। हाँ, म्यूटेटिस मुटेंडिस को कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे प्लीज? एनीवन? आपने ठीक बताया मुकद्दस, आपकी बात नहीं कर रहा फ्रॉम द क्लास। एनीबडी इफ कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ इट? बोनस मार्क्स हैं अभी इसी वक्त। सर एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन एक टर्म के तौर पे अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं। हाँ बताएं फवाद साहब बताएं। वो टर्म में यही है कि वो सारी तफसीलात जो पहले बयान की जा चुकी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और जो भी सूरत हाल के मुताबिक उसमें तोजी करनी पड़े या उसमें से रास्ता निकालना पड़े, वो डिफाइन करते हुए वो खुद करेंगे। ओवरऑल व्यू जो है वो वही रहेगा, और लेकिन उसकी रूह वही रहेगी, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंगली वो चेंज कर सकते हैं। सर मतलब सिमिलर जो है ना, एक ही नौयत के दो केसेस जिसमें जो है ना उसका ओरिजिनल सब्जेक्ट जो है वो चेंज किए बगैर नेसेसरी अल्टरेशंस की जाती हैं। ठीक है, मतलब मुकद्दस आपका आप तो प्रेजेंट करिए, आपका तो कॉन्सेप्ट है, आप एक मिनट रुकें। ठीक है जी, फातिमा जी। अच्छा बिलाल, इसमें जो ये है कि जो बिल्कुल फंडामेंटल है ना चीज, टर्म्स वगैरह उसको तो नहीं बदल रहे, लेकिन जो जैसे आप पहले कह रहे थे कि वो नई चीजें निकलती रहती हैं तो लोग पॉइंट्स आउट अरेज करते रहते हैं, तो उन चीजों को, उन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए जो थोड़ी सी न्यू अमेंडमेंट्स की जाती हैं उसके लिए ये बात होती है, ये टर्म यूज होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। तलहा जी, तलहा भट्ट साहब। जी सर, इसमें ये बताना चाह रहा था म्यूटेटिस मुटेंडिस में ये है कि व्हाइल स्टेइंग विद द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड मेकिंग सम अल्टरेशंस रिक्वायर्ड। सर ये इसका लफ्जी मीनिंग था जो मैंने भी स्लाइड से आर करते हुए पढ़ा था कि अगर नेसेसरी अल्टरेशंस आप उसमें कर सकते हैं व्हाइल स्टेइंग विद द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक, ये इस बिल्कुल टर्म ठीक। का अच्छा ठीक है, वो आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जो आइडिया है वो कभी भी चेंज ना हो, जो कोर है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके हिसाब से आप ऑल्टरेशन कर सकते हो, कीपिंग द सब्जेक्ट मैटर और द आइडिया सेम। ठीक है, बेसिक बात ये है। अच्छा, इसमें जो लॉ की टर्मिनोलॉजीज है ना जी, वो बड़ी बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे मेरा जो लॉ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। वो हुआ था, एक टर्मिनोलॉजी है पर्सोना नॉन ग्राटा। ठीक है, ये एक डिप्लोमेसी की टर्मिनोलॉजी है। मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहा था किसी वजह से, और उसको पढ़ते हुए तो फिर मुझे ये टर्म मैंने एक दफा पढ़ी और मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो डिप्लोमेट्स किसी कंट्री में डिप्लॉयड होते हैं ना, तो कोई भी कंट्री किसी भी वक्त, किसी आपने न्यूज में सुना होगा, नापसंदीदा शख्स करार दे देती है किसी को। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंडेटरी होता है उस बंदे के लिए वो 24 आवर्स के अंदर अंदर वो मुल्क छोड़ दे। ठीक है जी, तो इसको पर्सोना नॉन ग्राटा कहते हैं। सो द लीगल टर्मिनोलॉजीज आर एक्सट्रीमली फैंसी, दे आर सो फैंसी कि जिसे कोई हद नहीं है। एंड आई डोंट नो, देयर इज अ सर्टेन किक अगर आपकी नॉर्मल यूजेज और आपकी वोकैबुलरी के अंदर समहाउ आप लीगल टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल कर सकें, तो वो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाती हैं हर तरह से। तो जस्ट वांटेड टू मेक दिस पॉइंट। मुकद्दस कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू। Section 295, management by administrator. If at any time a creditor or creditors having interest equivalent in amount or not less than 60% of the paid up capital of the company represent to the commission that the affairs or business of the company or is being or have or has been conducted or managed in a manner likely to be prejudicial to the interest of the company, its members or creditors, or any director of the company or person concerned with the management of the company is or has been guilty of breach of trust, misfeasance or other misconduct towards the company or towards any of the members or creditors or directors. कोई creditor जो
जिसके पास 60% से कम पेड अप शेयर कैपिटल की सब्सक्रिप्शन ना हो, वो कमीशन के पास जा सकता है। कंपनी अगर वो ये देखे कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो कोई किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, या जिससे मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, किसी का भी इंटरेस्ट जो है वो एट स्टेक है, तो वो कमीशन से रिजू कर सकता है इसके खिलाफ। द अफेयर्स और बिजनेसेस ऑफ द कंपनी or is being or have or has been conducted or managed with intent to defraud its members or creditors or any other person, or for a fraudulent or unlawful purpose, or in a manner oppressive of any of such persons, or for purposes as aforesaid। वही बात है जो ऊपर बताई है कमोबेश। नेक्स्ट प्लीज। Or the affairs of the company have been so conducted or managed as to deprive the members thereof a reasonable return। मतलब जो है जैसे जैसे डिविडेंड जो है वो मतलब वो पे ना किया जाए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज को कंपनी अर्न तो कर रही है, प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन कोई रिटर्न ही ना दे शेयर होल्डर्स को, फिर भी कमीशन के पास जा सकती हैं। or any industrial project or unit to be set up or belonging to the company has not been completed or has not commenced operations or has not been operating smoothly, or its production or performance has so deteriorated that the administrator shall receive such remuneration as the commission may determine। ऑन एंड ऊपर वाले पॉइंट में डी में ये बताया हुआ है कि कोई कंपनी ने जैसे अगर क्रेडिटर ये देखे, क्रेडिटर के लिए बस शर्त ये है कि उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो मतलब मेजर स्टेक होल्डर हो, 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल की सब्सक्रिप्शन उसके पास। अगर वो ये देखे कि कोई कंपनी ने कोई ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया, तो जो उसके डायरेक्टर्स हैं या जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है सपोज, वो उसको टाइमली कंप्लीट नहीं कर रहा, या जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है तो उसके ऑपरेशन जो हैं उसको टाइमली उसका ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकता, तब भी जा सकता है। ऑन एंड फ्रॉम द डेट of appointment of the administrator, the management of the affairs of the company shall vest in him, and he shall exercise all the powers of the directors or other persons on whom the management vested। एडमिनिस्ट्रेटर का बताया हुआ है कि वो मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो वेस्ट इन जो है इसका मतलब ये होता है कि जो आप मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसको एक कलेक्ट कर लिया जाता है और कि वो सारे जो अफेयर्स हैं कंपनी के उसको मॉनिटर करे, और जो डायरेक्टर्स हैं सपोज वो जो उसको नॉमिनेट करते हैं वो अपनी पावर्स जो हैं वो उसको डेलीगेट कर देते हैं, जिसके अंदर रहते हुए उसने कंपनी के अफेयर्स जो हैं उनको मैनेज करना होता है। नेक्स्ट। सिर्फ 5 मिनट्स रह गया मीटिंग खत्म होने में। शैल वी कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन, और या इस हिसाब से आप कुछ क्लोज करना चाहेंगे? 5 मिनट्स रह गए हैं अभी। आर्टिकल्स कितने रहते हैं जी? सर आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें जी। नेक्स्ट पे चलें। 296 होगा, चलें 295 जो है पिछला ये कंप्लीट कर लें जी सर। और दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे बाकी। नो प्रॉब्लम। Where it appears to the administrator that any purchase or sales agency contract has been entered into, or any employment given patently to benefit any director or other person in whom the management vested or his nominees, and to the detriment of interest of general members, no person shall be entitled to or be paid any compensation or damages for termination of any office, contract, or employment under subsection 3 or subsection 4 if at any time it appears to the commission that the purpose of the order appointing the administrator has been fulfilled, it may permit the company to appoint directors, and on the appointment of director the administrator shall cease to hold office। That's it। So ये self ठीक हो explanatory है, गया। simple हाँ है। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुत आसान है। अच्छा जी, बात ये है कि एक तो फवाद साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है क्लास से कोऑर्डिनेट करके
आप प्लीज काइंडली मुझे व्हाट्सएप में ना उन लोगों के नेम्स बता दीजिएगा जो क्विज 4 दोबारा से देना चाहते हैं। जिन लोगों ने दे दिया था ऑलरेडी उनका तो हो चुका है ऑलरेडी, बट जो दोबारा से देना चाहते हैं मुझे उनके नाम बता दें, फिर मैं 2-3 घंटे के नोटिस पे आपको बता दूंगा क्विज कब है। ठीक है, मुझे आज की डेट में लेकिन इनके नाम बता दीजिएगा सबके जो देना चाहते हैं। ठीक है जी बेहतर है। और इसके अलावा जो क्विज 4 हो जाएगा तो 5 और 6 ये 2 क्विजेज हैं। ये 2 क्विजेज जी आपके सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा क्या है। आई एम श्योर आपने आर्टिकल्स वगैरह तो प्रिपेयर किए ही हुए हैं तो कोई इतना मसला तो नहीं होना चाहिए, बट आई विल स्टिल टेल कि कौन से ग्रुप की स्लाइड्स देख लें और क्या सिलेबस है कितने से कितना तक। तो ये 2 क्विजेज भी आपके इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास से पहले हम लोग इनको वाइंड अप कर देंगे। एक क्विज तो एटलीस्ट कर लेंगे और जो एक क्विज होगा वो बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मुझे इन लोगों के नाम चाहिए जो इसको रीटेक करना चाहते हैं। कुछ की मार्किंग तो ऑलरेडी हो चुकी है क्विज 4 की, लेकिन इफ एनीवन वांट्स टू रीटेक इट तो मोस्ट वेलकम, मुझे बता दें। जी ठीक है, बेहतर। जिनके 15 नंबर है उन्होंने तो क्यों ही लेने हैं। जी मरियम एहसान हैंड रेज किया था। सॉरी इकरा सर बाय जावेद मिस्टेक जी। हुआ है। अच्छा ठीक है जी, ओके नो प्रॉब्लम। जी इकरा जावेद आपसे भी गलती हो गई है। सर आई वांट टू रीटेक द टेस्ट। सर मेरा नाम मैं बता दूं, अभी आपको बता दूं सर, मैं बताऊं क्या क्या कहना है आपने? सॉरी, यू वांट टू डू व्हाट इकरा? मुझे आपकी आई कैन नॉट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो रीटेक का कह रही हैं कि अपने हाँ वो फवाद साहब को बताएं, फवाद साहब को। ठीक है जी हाजरा। सर मैंने जब क्विज किया था ना तो मैं उसको चेक कर रही थी, जब मैं उसको वापस फर्स्ट पेज पे गई, प्रीवियस पे आई हूँ तो वो एकदम से गायब हो गया। अब मुझे ये नहीं पता कि वो हुआ था, सबमिट हुआ था या नहीं हुआ था, तो मुझे अगर पता आप चले रीटेक तो करना फिर चाहती हैं? तो he doesn't अगर know कि सबमिट इसका नहीं हुआ सबमिट तो हुआ है फॉर कि नहीं श्योर मैं हुआ। करूँगी। अच्छा सबमिट हुआ है, चले मैं आपको बता देता हूँ, वो कोई मसला नहीं है। मैं ग्रुप में बता देता हूँ कि सबमिट किसका क्या है और क्या स्कोर्स हैं। आई शेयर, मैं बता देता हूँ, उसके बाद कोई लेना चाहे तो कर ले। ठीक है, अब मैं चलिए बता देता हूँ, थैंक अभी यू सर। बता देता हूँ। वेलकम, नो थैंक यू। प्रॉब्लम। ओके गाइज, अब अच्छी सी ईद स्पेंड करें और इंशाल्लाह इस ईद में आपने भूलना नहीं है कि हमारी एक क्लास है, 2 कुछ क्लासेस रह गई हैं। शुक्राने के नफल शफल तो आप लोगों ने पहले भी मांगे होंगे कि जल्दी जल्दी जान छूटे और हम निकले यहाँ से, लेकिन यू नो